Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our next chapter, chapter number 10. Today we will discuss about mensuration, chapter 10. In this chapter, we will discuss the perimeter area of different shapes, just like square, rectangle, triangle. So here, our first topic is perimeter. What is this perimeter? So perimeter is just the distance around the figure. जो भी शेप हमारे पास गिवन है उसकी जो आउटर बाउंड्रीज की जो डिस्टेंस है is known as the perimeter. So it is defined as it is the distance around the boundary of the shape. अब शेप आपकी कैसी हो सकती है? एक स्क्वायर भी हो सकता है, it can be a triangle, it can be a rectangle, it can be of any shape. Now let us consider parameter of different shape. First one, what is the parameter of, यहाँ पर हम लिख देते हैं name of the shape, just like square, name of the shape and its parameter. Parameter is equal to what? 4 into side of square. We know it very well. All the sides of the square are equal. If all the sides of the square are equal, then 4 into side. 4 into side. Or if the side is denoted by A, then it is known as 4A. If each side is denoted by A, then it is A. 4A. Where A is equal to side of square. तो स्क्वायर होता कैसा है? स्क्वायर हमारे पास होगा जिसके पास 4 इक्वल साइड्स होंगी. ऑल 90 डिग्री के एंगल होंगे. ऑल साइड्स आर इक्वल, इज नॉन एज द स्क्वायर. सपोज इसके सभी साइड्स क्या है हमारे पास? 4 हैं. तो हम सभी साइड्स को और बाउंड्रीज के अराउंड जो डिस्टेंस है उसे अगर हम ऐड करते हैं a plus a 2a plus a 3a plus a 4a, it becomes total equal to 4a, where a is equal to what? The side of the square. So it is generally equal to the 4 into the side of the square in the case of square. So parameter for different shape. So first one is this, second one is rectangle. Now what is the rectangle? How it would look like? कैसा दिखता है? Rectangle has, suppose तो हम यहाँ पर शेप बना देते हैं. Rectangle में क्या होगा? Opposite sides equal होंगी. All the angles are of 90 degree. इस केस में अगर हम पैरामीटर निकालें तो व्हाट इज द पैरामीटर? 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ So this is the formula for rectangle's parameter. So if length is denoted by L and breadth is denoted by B, so it is equal to 2 into L plus B. 2 into L plus B. This is the parameter of the rectangle. In third case, if we have a triangle, suppose it is an equilateral triangle. Triangle कैसा है? Equilateral. It may be of different sides. Equilateral में होता क्या है कि all the sides are equal. Equilateral triangle कैसा होगा? All the sides are of equal length. So इसका पैरामीटर कितना होगा? 3 into side. अब इसकी ईच एंड एवरी साइड को हम मान लेते हैं a, तो 3 into a.
वेयर ए इज द, वेयर यहां पर ए क्या होगा, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन केस ऑफ ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो कुछ शेप है जो सिंपल है, रेगुलर है। इफ द शेप इज नॉट रेगुलर, रेगुलर शेप को तो हमने देख लिया, स्क्वायर के केस में सभी साइड इक्वल है तो 4 इनटू साइड, रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, 2 इनटू l प्लस b। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 इनटू साइड। बट इफ एक क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी सभी साइडें अलग-अलग हो, एक ट्रायंगल हो जिसकी सभी साइड्स अलग-अलग हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, then how can we find the parameter? Just look at this diagram. This is a quadrilateral, a given quadrilateral whose all the sides are of different length. How can we find the parameter of such a quadrilateral? So its a parameter is equal to of quadrilateral, कंसेप्ट वही है। पैरामीटर में हमें क्या करना है, सभी साइड्स की बाउंड्रीज वाली जो साइड्स हैं उनका सम अप। अगर हमारे पास अंदर ऐसी कोई दो साइड गिवन होती तो हम अंदर वाली साइड का पैरामीटर नहीं लेते, हम लेंगे जस्ट बाउंड्री वाली साइड्स का पैरामीटर। तो इन केस हमें बाउंड्री वाली साइड कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ए डी हमने माना ए, अज्यूम्ड हमारे पास गिवन क्या है, ए, देन बी प्लस सी प्लस डी, all the sides are a plus b plus c plus d, so its parameter is equal to the sum of all sides, simple। but अगर आपको ऐसे डायगोनल भी गिवन है, so no need to add this diagonal, suppose in diagonal की भी वैल्यू गिवन है, ये है, ये f है, so no need to add these, याद रखना we have to add only boundaries, okay। now next one, suppose a triangle which is not an equilateral, consider another shape। Now all the sides are different, of different shape, different size. This is a triangle A, B and this is C. So now what is the parameter of this shape? Simply जैसे हमने अभी देखा है कि पैरामीटर क्या होता है, sum of all the sides of the triangle. So A plus B plus C, this will be the parameter of triangle। So given triangle का पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, a plus b plus c, clear। so पैरामीटर हमारे पास always is the sum of all the sides of the triangle। आपको बोला जाए हाफ पैरामीटर, तो हाफ पैरामीटर क्या होता है, sum of all the side को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ पैरामीटर आपको आगे काम आएगा इसलिए मैंने बता दिया। सेमी पैरामीटर हाफ पैरामीटर एक ही बात होती है, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट a plus b plus c को, sum of all the sides को 2 से डिवाइड करेंगे, then we get the parameter of such a shape, given shape। let us take an example। question number 1, find the parameter of the rectangle whose length and breadth are 225 cm and 1 meter 50 cm। in such a case how to solve the question? look at this, इसमें लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, शेप कैसा है, इस रेक्टेंगल शेप की है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है हमारे पास। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 225 सेंटीमीटर, यहां पर लेंथ है सेंटीमीटर में, एंड ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, breadth is given 1 meter 50 सेंटीमीटर। अब इसकी कंप्लीट यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में सारी, इसमें कुछ यूनिट मीटर में है, कुछ पोर्शन सेंटीमीटर में है। लेट अस कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इन द सेम सेंटीमीटर। सो 1 meter is equal to 100 centimeter plus 50 centimeter, so overall this becomes 150 centimeter।
अब ये भी पूरी सेंटीमीटर में है, ये पूरी क्वांटिटी भी सेंटीमीटर में है। नाउ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसे होगा, इसमें शेप कैसी बनेगी, इसके लिए हमें शेप बनानी होगी, एक रेक्टेंगल बनाना होगा। इसकी लेंथ हमें लेनी होगी 225 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी लेनी होगी 150 सेंटीमीटर। नाउ पैरामीटर इज इक्वल टू ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू में l प्लस बी, फॉर्मूला क्या था हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ कितनी है 225 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 150, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग व्हाट वी गेट 2 इंटू 375, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट 750, 37 2 74 and 750 सेंटीमीटर। सो इट्स आंसर विल बी 750 सेंटीमीटर। सो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। नाउ लेट अस डिस्कस एरिया। वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ पैरामीटर, हमने पैरामीटर देखा सभी शेप का, अब हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। नेक्स्ट वन एरिया। हाउ कैन वी डिफाइन एरिया, व्हाट इज एरिया? Area is the surface enclosed by a closed figure. The surface area enclosed by a closed figure is called area. So the surface, what we can say area is the surface enclosed by the closed figure. Okay, enclosed by the closed figure, जैसे कोई भी एक closed figure कैसा भी हो। अच्छा वन मोर थिंग, और पैरामीटर के लिए अगर हमारे पास ये है, सो इसमें पैरामीटर क्या है और एरिया क्या है ये आप आइडेंटिफाई कीजिए। कोई कैसी भी शेप है, मे बी ऑफ एनी शेप, रफ स्केच मैंने बनाया, इसका एरिया क्या होगा और पैरामीटर क्या होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एरिया कौन सा पोर्शन है, पैरामीटर कौन सा पोर्शन है। लुक एट हियर, अगर हम यहां से थ्रेड लें, उस थ्रेड को यहां से स्टार्ट करें, यहां से बिल्कुल इसके ऊपर थ्रेड को रखते रहिए, ऐसे चलते रहिए, ईच एंड एवरी बाउंड्री को बिल्कुल शार्पली चलिए और लास्ट में यहीं आके स्टॉप लॉस कीजिए। फिर उस थ्रेड को स्ट्रेच कीजिए, आप उसे इंच टेप से मेजर कीजिए। जो लेंथ आएगी मेजर करने के बाद, दिस इज नॉन एज द पैरामीटर। इट मींस जो बाउंड्री है इसकी, आउटसाइड की जो बाउंड्री है इज नॉन एज द पैरामीटर, बट जो इनसाइड का इसने जितना भी ये सरफेस लिया, यहां से यहां तक का जो सरफेस लिया इज नॉन एज द एरिया। जितना भी सरफेस कवर किया है इज नॉन एज द एरिया। ठीक है, नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप्स। फर्स्ट वन इज स्क्वायर। स्क्वायर हाउ टू लुक लाइक, इट्स अ स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स क्या है इक्वल है, लेट ऑल द साइड्स आर ऑफ ए साइज, ए यूनिट। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ साइड। इट मींस ए स्क्वायर, यहां पर हमारी साइड क्या है ए, इसे बोल सकते हैं हम ए स्क्वायर। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, सेकंड शेप हमारे पास है रेक्टेंगल की। हमने अभी भी क्या डिस्कस किया था, इसकी लेंथ एल और ब्रेड्थ बी मान लेते हैं रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा हमेशा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप यहां से देखिए दोनों में सेम ही है, हम पैरामीटर ले या
एरिया निकाले, दोनों का मेजरमेंट सेम ही जाएगा। देखिए कैसे, फॉर्मूला सेम एक चीज से ही बना है। अगर हम बात करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है L, विड्थ है B। समहाउ अगर हम इसको लिख रहे हैं L इंटू बी और L इज इक्वल टू बी हो जाए, L इज इक्वल टू क्या हो जाए B, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर। इट कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। अगर इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर दें, ब्रेड के जितना कर दें, तो ये स्क्वायर की शेप ले सकता है। इस केस में यहां पर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जब L इज इक्वल टू बी होगा, सपोज कर लो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कोई A हो गई। दोनों की वैल्यू L और B की वैल्यू कितनी है, A, हमने मान लिया। तो अज्यूम किया है तो इट्स कैन बी रिटन एज L के प्लेस पर हमने A लिखा, B के प्लेस पर भी A लिखा, A इंटू A इज इक्वल टू A स्क्वायर। A इंटू A क्या होगा, A स्क्वायर। तो अब यानी कि इसका एरिया कितना आ गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या बन गया, स्क्वायर के एरिया के जितना। तो रेक्टेंगल एंड एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया बोथ आर ड्राइवेबल फ्रॉम ईच अदर। सो यानी कि अगर उसकी साइड, एक रेक्टेंगल की साइड यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाएं, तो देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। और ये फॉर्मूले भी क्या है, एक दूसरे से सिमिलर ही। नाउ द नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। Area of triangle depend upon the different shapes. Well, basically we have three sides in the case of triangle. Just like here, equilateral triangle, equilateral triangle में आपको डायरेक्ट याद रखना है, if all the sides are same, A and A, its area will be equal to root 3 upon 4 A square. Its area will be equal to root 3 by 4 A square. But in case of other scalene triangle or other case, isosceles triangle, in any other case, other type of triangles, its area will be equal to, this is height. What is this? This is the height of this vertex from the base AB. इस C vertex की हाइट यहाँ से कितनी है? Suppose this is the point D. जो CD की डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी हाइट, और जो AB है वो कितना है, बेस कितना है A, दूसरी साइड BC। बट हमें बेस से मीनिंग होगा, जहाँ बेस, जो भी बेस होगा उसके रेस्पेक्टिव हाइट। अगर हम बेस लेते हैं इसको तो इसकी हाइट हो जाएगी ये वाली। अगर हम बेस लेते हैं इसको तो इसकी हाइट होगी यहां से यहां तक की शॉर्टेज डिस्टेंस। अब इसके लिए हाइट क्या है, C से AB के ऊपर जो शॉर्टेज डिस्टेंस है यानी कि दिस CD, तो इसका एरिया क्या बनेगा 1/2 दिस बेस। अब यहां बेस क्या है A इनटू हाइट क्या है यानी कि H, इसका एरिया कितना होगा 1/2 बेस A हाइट H। आपको ये याद रखना है 1/2 बेस इनटू हाइट। सो 1/2 बेस इनटू हाइट इसका फॉर्मूला होगा, आपको यूज पड़ेगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, दीज आर सम फॉर्मूलाज फॉर द डिफरेंट शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स जस्ट लाइक आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्रायंगल्स। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। आपके पास इस तरह का कोई फिगर गिवन है, तो किसी के घर का नक्शा है, कुछ भी मकान बना हुआ है, यू हैव टू फाइंड द एरिया दैट इज यूज्ड टू मेक दिस हाउस। नाउ लुक एट हियर, मेजरमेंट कैसे गिवन है, इसका जो एरिया है वो कितना होगा, स्क्वायर शेप है 4 into 4। इसके हमें लेंथ नहीं पता, ब्रेड्थ पता है, इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, जितनी इसकी है 4, तो इसकी भी कितनी होगी 4। नाउ इन दिस केस यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 16। अगर टोटल डिस्टेंस 16 है, ये पोर्शन 4 है, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक भी क्या है 4, यहां से यहां तक भी क्या है 4 है, तो ये कितना बच गया, लुक एट हियर अगेन, इतना पोर्शन हमारे पास 4, इतना पोर्शन अगेन 4, इतना भी 4, तो ये बीच का जो पोर्शन बच गया 16 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 + 4 + 4 12, 16 - 12 इट इज इक्वल टू 4 मीटर।
So now it is equal to 4 meter. So find the area of the given figure. इस given figure का एरिया कितना हो गया, जहां हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. लेट अस नेम इट. कुछ नेमिंग लिख दीजिए आप इसको, जैसे A B C D, C P Q R S. P Q R S हो गया. यहाँ हम लिख देंगे भाई, यहाँ तक ही निकालना है ना, तो बस शेप तो यहीं तक है. देन D E C Q R S E, then F G H. Now how to find the area of different shape? हमने इसका मेजरमेंट निकालना है, इसकी लेंथ चाहिए. इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? अगर ये 4 है निकला हमारे पास, दिस इज 4, तो ये पोर्शन कितना हो गया? 4 + 4 + 4 12. तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई? 12 मीटर. आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए कि कैसे कैसे हमने लेंथ निकाली है. इस तरह का कितना भी डिफिकल्ट आपके पास डायग्राम हो, यू कैन मेजर इट इजीली, बट यू हैव टू वॉच इट केयरफुली. ओके, नाउ लुक एट हियर. ये हमने कितना देखा था? 4 गिवन है, ये भी 4 गिवन है. ये टोटल 16 था, तो हमने यहाँ से 4 निकाल लिया. ये 4 निकला तो ये भी 4 हो गया, यानी कि टोटल कितना हुआ? 8 + 4 मिलाएंगे तो 8 + 4 12. यानी यहाँ तक का ये कितना आया? 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक. इट मींस इसका एरिया कितना हुआ? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ 8, ब्रेड्थ 4. जो ये शेप है CDEQ, इसका एरिया निकालने के लिए इसकी साइड चाहिए, वो भी हमें नहीं पता. लेट अस मेजर. हमने ये साइड निकाली, ये साइड निकाली, ये वाली भी साइड हमने निकाली है 4, और हमने कौन सी साइड निकाली? ये वाली. नाउ द लेंथ, दिस टोटल लेंथ, यहां से G से लेकर R तक की जो लेंथ है पूरी स्ट्रेट लेंथ, इट इज इक्वल टू 14. 4 इतना पोर्शन है, यहां तक क्या आ गया? 4. यहां से यहां तक भी क्या है? ये 4. नेक्स्ट अगेन जो बच गया वो कितना रह गया? 14 - 8, यानी कि 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर. ये लेंथ हमारी कितनी आ गई? 6 मीटर. तो इसका एरिया कितना होगा? 4 × 6. क्लियर? और इसका एरिया कितना होगा? 12 × 4. तो सबका एरिया हमारे पास आ गया. सभी का नाम लिखो. सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन शेप इज इक्वल टू 4 × 4. शेप का नाम लिखिए. एरिया ऑफ, हमें लिखना कैसे है, कैसे हम इसको अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं, शेप को डिफरेंट लिखना होगा. एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ दूसरी शेप क्या है? CQED या CDEQ. नेक्स्ट प्लस एरिया ऑफ PQRS. नेक्स्ट प्लस एरिया ऑफ DH FGH एंड D. तो हमारे पास कितने पोर्शन है? क्लोज पोर्शन कितने हमारे पास? 1 2 3 4 4 है. 4 की 4 हमने लिख लिए हैं. नाउ एरिया ऑफ ABCD कितना है? 4 × 4 प्लस ब्रैकेट में बंद कीजिए इसको. एरिया ऑफ CDEQ 8 × 4 प्लस एरिया ऑफ PQRS 4 × 6 प्लस एरिया ऑफ FGHD कितना है? 12 × 4. लेंथ इनटू ब्रेड, सिंपल फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड. सो व्हाट इज दिस? 16 + 32 + 24 + 48. इनको ऐड कर दीजिए. 48 + 48 96. 400 + 20 120 मीटर स्क्वायर. उसकी यूनिट क्या होती है? कभी भी हम एरिया निकालेंगे उसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंपली आपको ये यूनिट भी याद रखनी है, स्क्वायर इनटू यूनिट. इसकी यूनिट हमेशा क्या होगी एरिया की?
स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, लास्ट में हमें लगाना कंपलसरी है। एंड यूनिट ऑफ पैरामीटर क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, और कोई भी जो डिस्टेंस गिवन हो किलोमीटर, ये हमारी क्या होगी यूनिट, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। ओके, तो आपको जो दो क्वेश्चन मैंने दिए इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है, समझना है, फेयर नोटबुक में नोट भी करना है, सारे आइडेंटिटीज फॉर्मूले जो बताएंगे भी फेयर नोटबुक में लिखना है, एंड देन सेंड इट टू मी। ओके, थैंक यू।